بلیٹن کا آغاز کریں گے کورونا وائرس کی تازہ ترین فگرز کے ساتھ۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کورونا کے مزید 10 مریض زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ 1082 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں 617 مریض زیر علاج ہیں، 97 ICCU میں داخل ہیں، جبکہ 69 وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس کے حملوں میں شدت آ رہی ہے۔ 84 دنوں میں شہر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 17,411 اور 237 اموات ہو چکی ہیں۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں مجموعی طور پر 617 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 97 انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہیں۔ حالت تشویشناک ہونے پر 69 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2164 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ 30 اموات واقع ہوئیں۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق پنجاب بھر میں کورونا کے کیسز کی مجموعی تعداد 35,308 ہو گئی ہے۔ صوبے میں اب تک 659 اموات ہوئی ہیں۔ اب تک 2,75,139 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,953 ہے۔ عید کے دوران کی گئی بے احتیاطی کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے مثبت کیسز کی شرح میں 4% تک کا اضافہ ہو گیا۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق یکم رمضان پر مثبت کیسز کی شرح 6.8% تھی، لیکن عید پر مارکیٹس کھولنے اور SOPs پر عمل نہ کرنے سے کورونا کے مثبت افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور عید کے بعد مثبت کیسز کی شرح 7.12% پر پہنچ گئی ہے، جبکہ پاکستان میں کورونا سے ریکوری ریٹ 7.34% اور پنجاب میں کورونا سے ریکوری ریٹ 5.22% ہے۔ اسی طرح ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں کورونا کا ڈیتھ ریٹ 1.2% اور پنجاب میں کورونا کا ڈیتھ ریٹ 9.1% ہے۔ ماہرین نے اگلا ہفتہ کووڈ-19 کیسز کے حوالے سے انتہائی اہم قرار دے دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلے ہفتے سے عید کے دوران کی گئی بے احتیاطی کی پیک شرح متوقع ہے، جس سے بالخصوص لاہور میں مریضوں کی تعداد میں ہولناک اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ افسوسناک خبر ہے، ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ملک احمد علی کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم ملک احمد علی ایڈوکیٹ کچھ عرصے سے میو ہاسپٹل کے کورونا وارڈ میں زیر علاج تھے۔ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ملک احمد علی کورونا وائرس کے باعث انتقال کر چکے ہیں۔ مرحوم ملک احمد علی ایڈوکیٹ کچھ عرصے سے میو ہسپتال کی کورونا وارڈ میں زیر علاج تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبے میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک مقامات، مارکیٹس، بازاروں اور پارکس میں ماسک پہننے کی پابندی پر عمل کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مریضوں کے علاج معالجے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیف سیکرٹری سینیٹائز، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر و میڈیکل ایجوکیشن ماہر طب ڈاکٹر محمود شوکت، PKLI کے ڈاکٹر جاوید حیات خان اور متعلقہ حکام کے اجلاس کی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ماسک پہننا شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ گھر سے نکلتے وقت شہری ماسک لازمی پہنے۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد حاصل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاق اور پنجاب نے SOPs پر عمل درآمد کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج اور رینجرز کی مدد حاصل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ مارکیٹوں اور پبلک مقامات پر سیکیورٹی فورسز کو انتظامیہ کے ساتھ گشت کروا کر سخت پیغام دیا جائے۔ جن مارکیٹوں میں SOPs کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کو جرمانوں کے ساتھ اخلاقی سزائیں دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کو SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایات کر دی ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت کورونا وبا پر قائم کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پہلے مرحلے میں پنجاب میں ڈریپ سے منظور شدہ 1000 انجیکشن خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری صحت نے صوبے میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں پنجاب میں ٹریپ سے منظور شدہ 1000 انجیکشن خریدے جائیں گے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، حکومت تمام وسائل بروئے کار لائے گی، تمام پبلک مقامات پر SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ہر شہری کو کورونا وائرس کی شدت کا احساس ہو چکا ہے، ذمہ داری بھی
निभाएं। शहरी पार्कों में बच्चों को साथ न लाएं और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सीनियर वजीर ने हिदायत की कि जहां खिलाफ वर्जी हो वहां सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाजारों में तयशुदा औकात में SOPs के साथ सरगर्मियां जारी रखी जाएं। संगीन गफलत की हद तक ताखीर के बाद हुकूमत कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन खरीदने को तैयार, मगर मार्केट में इंजेक्शन नापैद हो गया। 1000 इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन इंजेक्शन तैयार करने वाली कंपनी के पास इस वक्त स्टॉक मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल्स में मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला कोरोना मरीज जान बचाने वाले इंजेक्शन एक्टेम्बरा की राह तकने पर मजबूर हो गए हैं। कोरोना के शदीद अलील मरीजों की जिंदगियां बचाने वाला इंजेक्शन एक हफ्ते बाद भी दस्तयाब नहीं हो सका। इंजेक्शन एक्टेम्बरा खरीदने में पहले गैर संजीदगी का मुजाहरा करने वाली पंजाब हुकूमत को आखिरकार अपनी संगीन गफलत का ख्याल आ ही गया। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले 1000 इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दी। ताहम फैसले में ताखीर की वजह से अब इंजेक्शन मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। इंजेक्शन तैयार करने वाले बैनुल अक़वामी दवासाज इदारे रोश के पास भी स्टॉक खत्म हो चुका है। ताहाल बैरून मुल्क से इंजेक्शन दरामद नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से इंजेक्शन खरीदारी के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद मुश्किलात से दो चार है। उधर अस्पताल में कोरोना के शदीद अलील मरीजों की जिंदगी को दरपेश खतरात में हर गुजरते लम्हे इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के बाहर जारी हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। MPA सैफुल मुलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर, MPA यासीन सोहल के 2 बेटे अशराफ सोहल और हारिस सोहेल भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिस पर वो घर में करंतना हो गए हैं। ख्वाजा सलमान रफीक फलाही कामों के लिए मुतहरिक थे। उन्होंने गुज़श्ता दिनों सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर न सिर्फ मुख्तलिफ अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ में हिफाजती लिबास तकसीम किए, बल्कि अपने हल्के में राशन तकसीम करने में भी मसरूफ रहे। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मुलूक खोखर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। सैफुल मुलूक खोखर ने अपने आप को अपनी रिहाइश का खोखर पैलेस जौहर टाउन में करंतना कर लिया है। सैफ खोखर के बेटे फैसल सैफ खोखर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया था। उधर मुस्लिम लीग नून के ही रुकन सूबाई असम्बली चौधरी यासीन सोहल के दोनों बेटों चौधरी आशारिब सोहल एडवोकेट और हारिस सोहल एडवोकेट में भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपनी रिहाइशगाह डिफेंस में करंतना हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अपनी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील करते हुए कहा है कि आवाम भी मूजी वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। उमर असलम, सिटी 42। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स भर चुके हैं। मुश्तबा मरीजों को 7 रोज तक टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं दी जाती। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अस्पताल भर चुके हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप घरों में क्वारंटीन हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अस्पताल तब तक टेस्ट नहीं कर रहे जब तक आप अस्पतालों में एडमिशन नहीं ले लेते। हुकूमत की ये जो मुतज़ाद पॉलिसियां हैं, हम ये समझते हैं कि उसमें घबराना एक आम फितरी अमल है और इस वक्त पूरे सूबे में एक क्यास है, एक परेशानी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में 40% तक अमला खुद कोरोना का शिकार है। सबसे बढ़कर जो NCOC के स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, हम ये समझते हैं वो हकाइक पर मुबनी नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो मैं ये बता दूं कि जो डॉक्टर्स बीमार होके आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स की फैमिलीज बीमार हो रही हैं, उनको वेंटिलेटर्स मुहैया नहीं हो रहे। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मरीजों के लिए और आम लोगों के लिए वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं? यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत की बदलती पॉलिसियों की वजह से आवाम ने भी SOPs का ख्याल करना छोड़ दिया है। आवाम के रवैये से हेल्थ वर्कर्स का जज्बा पस्ती का शिकार हो गया है। MBBS के तलबा को प्रमोट किया जाए ताकि अस्पतालों में हाउस ऑफिसर्स की कमी को पूरा किया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। गवर्नेंस के शाखसाने के हवाले से MBBS फाइनल ईयर के 500 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। सप्लीमेंट इम्तिहानात मुलतवी होने के बायस तलबा का एक साथ जाए इम्तिहान पास करके रवाबर हाउस जॉब नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इंतज़ाम 1 जून से शुरू होने वाले MBBS के सप्लीमेंट इम्तिहानात को अचानक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बादामी बाग लारी अड्डे में कोरोना वायरस SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। ना मास्क ना ही समाजी फासले की परवाह की जा रही है।
शहर के सबसे बड़े लारी अड्डे पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राउदुलशाद हुसैन। ना मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासला रखने पर तवज्जो दी जा रही है। ये मनाजिर हैं शहर के सबसे बड़े लारी अड्डे के, जहां मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासला इख्तियार करने और हैंड सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल से भी गुरेज किया जाने लगा। लारी अड्डा इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई, जबकि ट्रांसपोर्टर्स भी मुसाफिरों के माबैन समाजी फासले की शर्त नजरअंदाज करने लगे। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि सवारियों को गाड़ी में मास्क के बगैर सवार नहीं किया जाता, ताहम लारी अड्डे में चलते फिरते मुसाफिरों पर SOPs लागू करना इंतहाई मुश्किल टास्क है। देखो कि एक सवारी बाहर से आ रही है, वो अपना मास्क नहीं पहन रही या कुछ नहीं कर रही, उसकी मारे जिस वक्त वो हमारे पास आती है, टिकट खरीदती है और गाड़ी में बैठती है, अगर मास्क से बगैर है तो उसकी मुकम्मल हमारे जो ना कार्रवाई हो रही है। SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो लारी अड्डे को कोरोना वायरस के फैलाव का गढ़ बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा राउदुलशाद हुसैन, सिटी 42। अनारकली बाजार में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कपड़ों और जूतों के आर्जी स्टॉल सजाए गए। SOPs को नजरअंदाज किए शहरी बिला खौफ व खतर शॉपिंग करते रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 5 रोज कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए कारोबार करने की इजाजत दी गई, जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन के अहकामात हैं। मगर अनारकली बाजार में आरजी स्टॉल्स होल्डर्स ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। आरजी स्टॉल्स पर फैमिलीज बच्चों के साथ शॉपिंग करती रहीं। आरजी स्टॉल होल्डर्स ने भी गिले शिकवों के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत कम अज कम एतवार के रोज स्टॉल लगाने की इजाजत दे, ताकि वो भी अपने बच्चों का रिज्क कमा सकें। सर हमारी सी डिमांड यही है कि दुकानदार तो 5 दिन चलो अंदर बैठ के कमा लेता है, हम लोग लगाते हैं बाहर स्टॉल, हमें तो सख्ती है बाहर लगाने से भी। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमें एक दिन के लिए संडे को दे दें, सिर्फ कि संडे को 10 से लेकर 7 बजे तक 6 बजे तक का टाइम दे दें, ताकि उससे हम भी अपने घर के बच्चों के लिए कुछ बेहतर रोटी ले जाएं, हलाल की रोटी लेके जाएं। अनारकली बाजार बज़ाहिर तो बंद रहा, मगर ताजरों की कसी तादाद बंद दुकानों के सामने खड़ी नजर आई। ताजर ग्राहकों को शटर उठाकर शॉपिंग भी कराते रहे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लॉकडाउन यकीनी बनाने की हिदायत पर शहर में 100 से ज्यादा दुकानें खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गई हैं। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि हफ्ता और इतवार शहर की तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद रहेंगी। CCPO ने तमाम डिवीजनल अफसरान को अपने अपने डिवीजन्स की मार्केट्स का दौरा करने की हिदायत की है और हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया है। CCPO के हुक्म पर तमाम SOPs ने अपने अपने इलाकों में मार्केट्स का दौरा किया और जो दुकान हैं हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया। पुलिस ने इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, भट्टा चौक समेत दीगर इलाकों में 100 से ज्यादा दुकानों को सील किया। जिले इंतजामिया की तरफ से कोरोना हिफाजती SOPs पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 140 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 84,000 के जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने तहसील कैंट में 60 दुकानों को सील किया, जबकि 40,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने तहसील सिटी में 67 दुकानों को सील किया, 30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा ने तहसील मॉडल टाउन में 13 दुकानों को सील करके 14,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। DC लाहौर दानिश अफजाल ने कहा कि मजमूई तौर पर 140 दुकानों को सील किया गया है और 84,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। मुसाफिरों की जानिब से इस ज़्यादा कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने का मामला है। रेलवे हुक्काम का रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बगैर मास्क आने वाले मुसाफिरों को 500 रुपए जुर्माना करने का ऐलान। डिविजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर आमिर निसार चौधरी की हिदायत पर DC रेलवे शीरी हिना असगर ने अहकामात जारी कर दिए हैं। DCO रेलवे शीरी हिना असगर के मुताबिक आज से बगैर मास्क सफर करने और रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को जुर्माना किया जाएगा। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कोई भी मुसाफिर बगैर मास्क न आए। मास्क न पहनने वाले मुसाफिरों को 500 रुपए जुर्माना किया जाए। जुर्माना अदा न करने वाले और मास्क न पहनने वाले मुसाफिर को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। शीरी हिना के मुताबिक SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा, क्योंकि बगैर मास्क के सफर और रेलवे स्टेशन में दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात और मुतासरीन की तादाद में इजाफे पर इजहार ताज़ियत और अफसोस। कहते हैं कोरोना की तबाहकारी वज़ीर आज़म और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी है। इस्लाह अहवाल के लिए नज़रसानी की जाए। हालात की संगीनी को देखते हुए वज़ीर आज़म साहब की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमवात की शरह और मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा मुतकाज़ी है। और कुछ बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, शहरी पेट्रोल को तरस चुके हैं। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। दीगर पर लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल की कीमत में कमी से सप्लाई में तातुल आ चुका है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार होकर रह गए। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत कम हुई, मगर आवाम की परेशानी कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। सप्लाई में तातुल के बायस मुताद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। जहां पेट्रोल मिल रहा वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जगह जगह पेट्रोल नहीं मिलता। पहले पिछले पेट्रोल पंप देख के आए हैं। हाँ साथ ही हुकूमत आई यही हाल हो रहा है। असं फोदगे जा रहे हैं कि कितों पेट्रोल होवांगे सी घर कितना पहुँचाएंगे ना जानू स्यापा कितना करिए। ये बहुत मजबूरी हो गई है। खान साहब ने अपनी कमीशन दिलानियां मिल गई हैं, वो लुट रहे हैं, वहाँ परेशान हो रही है, जिसकी वजह से लोग ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाअहली से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। सप्लाई बंद होने से पेट्रोल नायाब हो गया है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई अमली कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। पीछे पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पे पेट्रोल नहीं, फिर यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी पेट्रोल कोई नहीं। अब ये दोस्त मिल गया, इनसे बोतल में पेट्रोल लिया मैंने थोड़ा। बहुत ज़्यादा घूमे, आज हो गया कोई 15-20 मिनट हो गए। 2-3 पेट्रोल पंप पे गया, नहीं मिला। इधर आए उधर भी नहीं मिला, क्या करो। पेट्रोल की कीमत कम होना अच्छी बात है, मगर पेट्रोल की सप्लाई यकीनी बनाना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है। पेट्रोल के बहरान का खात्मा होना चाहिए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। महंगाई से स्थायी अवाम के लिए बुरी खबर है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने आटे के 20 किलो थैले की कीमत में मजीद 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। शहर में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होता रहा। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियां या फ्लोर मिल्स मालकान की हट धर्मी। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 975 रुपए कर दी गई। तहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा, जबकि गुज़िश्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा कर दिया गया। 10 रोज कबल आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 170 रुपए का इजाफा किया गया। शहरियों का कहना है कि पीटीआई ने अवाम को महंगाई कम करने के जो सब्ज बाग दिखाए वो सब झूठ थे। रियासत मदीना सिर्फ नाम की रह गई है। अब रियासत मदीना कहाँ है? मैं इस हाकिम वक्त से पूछता हूँ कि वो कहाँ है, रियासत मदीना का दावेदार जिसने इस मुल्क के बेड़े को उठाने का वादा तो किया था, लेकिन आज ये आवाम अपने भूख और अफलास की ज़िंदगी के अंदर ही मर रही है। जो करिंदे इमरान खान के हमसे वोट मांगने आए थे, आज वो कहाँ गए हैं? आटे की कीमत 820 रुपये से लेके 1000 रुपये पे चला गया तोड़ा। हुकूमत का कोई भी नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। 805 रुपये का मिल रहा था थैला पहले, अब भाई 1000 से ऊपर की नर्क हो गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा महकमा खुराक पंजाब की नाकिस पॉलिसियों के बायस हुआ। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो परचेज है वो फिलफौर बंद कर दे, क्योंकि अब उनके पास वीट बहुत थोड़ी तादाद में आ रही है, और साथ साथ इसके लिए कोई मुस्बत इकदाम उठाए कि अपनी जो उनके पास वीट पड़ी है उसका इशू रेट अनाउंस करें और उसको फ्लावर मिल को सस्ते दामों या जिस रेट पे भी दे गंदम, उसी रेट पे फिर आटा फरोख्त होने लग जाएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम ना होने पर आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। हसन अली, सिटी 42। सूबाई काबीना में रद्दोबदल, वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स वजीर आला के पास पहुंच चुकी हैं। रद्दोबदल का मामला बजट के पेश होने तक टल चुका है।
पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास बेशतर वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स पहुंच गई हैं। वज़ीर आला ने वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 5 वज़रा नाकिस कारकर्दगी पर वज़ीर आला की रेडार पर हैं। ज़राए का कहना है कि बजट के बाद काबीना में रद्दोबदल की जाएगी। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म भी लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म के सामने वज़ीर आला काबीना अराकीन की रिपोर्ट्स पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना में नाकिस कारकर्दगी वाले वज़रा तब्दील कर दिए जाएंगे। और कुछ बात बजट की, तो पंजाब में नए बजट की तैयारी हतमी मराहिल में पहुंच चुकी है। सरकारी महकमों के तरक्याती बजट पर अरबों रुपए का कट लगा दिया गया है। तनख्वाहों की अदायगी, इंतहाई जरूरी अखराजात और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को मद्देनजर रखा गया है। पंजाब का बजट जून के वस्त में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तरक्याती और गैर तरक्याती बजट को हतमी शक्ल दे दी गई है। तरक्याती बजट की तैयारी में 3 अहम नकात को तरजीह दी गई है, जिससे सरकारी महकमों के बजट में अरबों रुपए का कट लग गया है। मुतादिद महकमों को गुज़श्ता साल के अरबों रुपए के मुकाबले में नए साल में सिर्फ चंद करोड़ रुपए ही दिए जाएंगे। नए तरक्याती बजट के लिए तनख्वाहों की अदायगी, इंतहाई ज़रूरी अखराजात और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को अहमियत दी गई है। गैर अहम और तरजीही फहरिस्त में न आने वाले मंसूबे फारिग कर दिए गए हैं। नई हिदायत के मुताबिक बजट तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। माली साल 2020-21 के लिए विफाकी बजट की तैयारियां, ताजिरों और सनतकारों ने विफाकी हुकूमत से बजट में कोरोना रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया है। आइंदा माली साल 2020-21 के लिए विफाकी हुकूमत ने कमर कस ली, जबकि ताजरों और सनतकारों ने हुकूमत से कोरोना रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन आजम चौधरी का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस मुल्की मईशत मुतासिर हो रही है। विफाकी हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में सनतकारों को बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ देने के साथ साथ शरह सूद को 5% तक लाए ताकि सनतें चलें। आजम चौधरी का कहना था कि आइंदा माली साल में हुकूमत इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करे ताकि खाम माल बआसानी इंपोर्ट किया जा सके। गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज कम करे ताकि बाहर से जो खाम माल पूरे पाकिस्तान को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर जो मुहैया किया जाता है उसके रेट कम हो, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री इन 3 महीनों के अंदर बहुत ज्यादा सफर कर चुकी है। दूसरी तरफ कार लाइन से वाबस्ता अफराद ने भी आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ के लिए उम्मीदें बांध ली हैं। अंजुमन ताजरान कार डीलर्स जेल रोड के चेयरमैन चौधरी इदरीस कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन हुआ था इसमें ताजरों को नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत बैंकों से लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा करने के साथ साथ पंजाब में टोकन टैक्स और गाड़ियों पर आयद दीगर टैक्सों में कमी करे। हमारा मुतालबा ये है कि ये कम से कम टैक्सेस लगाएं और ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको रिलीफ दें। और दूसरा ये है कि ये इनको चाहिए कि ये कम से कम जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनके ऊपर भी ये सोचें कि जो इस इंडस्ट्री से मुतल्लिक, इस कार लाइन के मुतल्लिक जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके मुतल्लिक भी ये सोचें। सनतकारों और ताजरों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने हुकूमत का मुकम्मल साथ दिया था। अब हुकूमत को चाहिए कि वो उनका भी ख्याल रखे और बजट में रिलीफ दे। हसन अली, सिटी 42। सरकारी स्कूलों के इस्तिज़ा और उनके अहले खाना की जानिब से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने DPI एलिमेंट्री पंजाब की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब भर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा और उनके अहले खाना की जानिब से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम ने DPI एलिमेंट्री पंजाब की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में रिजवाना खलील, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कैडेट गर्ल्स हाई स्कूल लाहौर और एडिशनल DPI एलिमेंट्री पंजाब मेंबरान होंगे। तहकीकाती कमेटी ने पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया है। कमेटी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम वसूल करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करेगी। जराये के मुताबिक रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ के असातिज़ा के खिलाफ पहले से महकमा तालीम ने कार्रवाई का आगाज कर रखा है। रेस्क्यू 1122 की पंजाब में करप्शन की गजब कहानी। रेस्क्यू एकेडमी में लाखों रुपए की खुर्द-बुर्द के इल्जामात इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हो चुके हैं। अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए।
एकेडमी में नस्ब जनरेटर में 56 लाख रुपए डीजल की मद में खुर्द बुर्द की गई थी। होम डिपार्टमेंट की तहकीकात से कबल ही डीजी रेस्क्यू ने अफसरान और मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए थे। जराये का कहना था कि मनपसंद अफसरान को बचाने के लिए होम डिपार्टमेंट के एक्शन से कबल ही शो कॉज नोटिस जारी किए गए। रजिस्ट्रार एकेडमी डॉक्टर फरहान खालिद, डिप्टी डायरेक्टर R&M इंजीनियर शकील अहमद और इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन इरफान हसन को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। डॉक्टर फरहान खालिद साल हर साल से हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट तैनात रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में करोड़ों रुपए की खरीदारी मशकूक हो गई है। इसी तरह इंजीनियर शकील को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 16 जून को जाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में अवाम को रिलीफ देने के लिए 4 नई पनाहगाहें बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए बजट भी मंजूर कर लिया गया है। महकमा खजाना ने महकमा सोशल वेलफेयर को नई पनाहगाहें तामीर करने की इजाजत दे दी है। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत ने 4 नई पनाहगाहों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। नई पनाहगाहें फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा और साहिवाल में तामीर की जाएंगी। सूबे में 4 पनाहगाहों के लिए महकमा खजाना ने बजट भी मंजूर कर लिया। पनाहगाहों में शहरियों को रिहाइश की सहूलियात मिलेंगी। पनाहगाह में मुकीम शहरियों को खाना भी हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाएगा। डायरेक्टर रीजन बी ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए शहर के पॉश इलाकों में नए घरों और पहले से मौजूद प्रॉपर्टी यूनिट्स का सर्वे करने का हुक्म दे दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स चोरों को टैक्स नेट में शामिल करने, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डायरेक्टर रीजन बी रिजवान शेरवानी ने शहर के ETOs को मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक ETOs अपने इलाकों में बनने वाले नए घरों को फौरी तौर पर टैक्स नेट में शामिल करें। और शहरियों को ट्रैफिक चालान जमा करवाने के लिए अब लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने जुर्माने की अदायगियों के लिए सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइमिंग शेड्यूल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। अब ट्रैफिक जुर्मानों के लिए ऑनलाइन अदायगी से अवाम को आसानी होगी। ऑनलाइन टाइमिंग शेड्यूल के जरिए शहरी लाहौर के 18 ड्राइविंग सेंटर्स में घर बैठे लाइसेंस के हसूल के लिए वक्त और तारीख हासिल कर सकेंगे। सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए ऑनलाइन टाइम शेड्यूल का दायरा कार भी दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि इनकी प्रमोशन और दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर ट्रैफिक पुलिस को जुर्मानों की सिस्टम इजरा पर मुबारकबाद दी। कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना हमारी पॉलिसी है। शहरी ये सहूलत रास्ता ऐप, वेब पोर्टल और कमाल सेंटर के जरिए हासिल कर सकते हैं। IG पंजाब पुलिस, एडिशनल IG ट्रैफिक, CCPO लाहौर, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, सेक्रेटरी इत्तलात, CTO लाहौर और मुतल्लिका हुकाम ने इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने PCB वेलफेयर फंड के लिए 15 लाख रुपए का अतिया करने का ऐलान कर दिया है। माली इमदाद से मसाइल से 2-4 साबिक क्रिकेटर, मैच ऑफिशियल, स्कोरर्स और ग्राउंड स्टाफ की मुआवनत की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक वसीम खान PCB वेलफेयर फंड में 15 लाख रुपए अतिया करेंगे। वसीम खान ने ज़ाती हैसियत में अगले 3 माह में 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जो माली मसाइल से 2-4 साबिक क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशियल, स्कोरर्स और ग्राउंड्समैन की इमदाद के लिए खर्च होंगे। वसीम खान ने रकम अतिया करने का रज़ाकाराना फैसला इन सख्त हालात में खेल के स्टेक होल्डर्स की मदद के लिए किया है। वसीम खान का कहना है कि ये मेरा एक छोटा सा हिस्सा है। वेलफेयर फंड पहले ही स्टेक होल्डर्स की माली मुआवनत के लिए कायम है। PCB के मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा करना माजी में रवायत रही, मगर इसके बरक्स हमने आइंदा 12 माह के लिए अपने अखराजात को मजीद कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 1 लाख रुपए या इससे कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के मुआवजों में इजाफा करने का फैसला किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।